I feel like earlier women didn't have rights, but because of feminism we got rights, and we have job opportunities, and we can travel safe. So I feel, yeah, feminism has helped us gain a lot. In the 19th century lived a woman named Savitri Bai. She is a pioneer for feminists in our country. You might have heard her briefly mentioned in your history textbooks, but do you realize that she sparked a revolution of women education in India? It was not about of my choice that they would let me do what I wanted to do, but I wanted to study, full stop. So then my father said, okay, if you want to study, you have to go where I will send you. The moment I entered into a competitive world, it was a male-dominated professional environment. Even with broad support for gender equality, a significant portion of urban India believes that women are responsible for childbearing. Male-dominated environment, when we talk about it, there are so many areas which are completely occupied by the male population. Or maybe it's the case that women are considered too weak to handle the job. When was the last time we heard about an Indian female racer or maybe a bartender? We have hardly any females in the delivery agent fields. 1 in 5 men surveyed disagree with women working outside their homes. There is also little difference in this belief between generations. Both men under 30 and above 30 felt equally strongly about women working. मैंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की है. जैसे डायरेक्ट करने के लिए भी जब मैं राइटिंग करने लगी तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम दूसरों को समझाती हो, एग्जीक्यूट करती हो, कि तुम उनको बोलती हो कि ऐसा डायरेक्शन करो वैसा, तो तुम खुद क्यों नहीं डायरेक्ट कर रही हो. तो जब तुम्हें ऐसा सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से और कोई मोटिवेशन मिलता है, जैसे कोई आपको कहता है कि तुम नहीं कर सकती हो, वैसे ही कोई अगर आपको कहता है कि तुम ये कर सकती हो, तो फिर एक एनर्जी आ जाती है. और वही एनर्जी से आज मैं बनी हूँ, आज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और ऑल इन वन बनी हूँ. पर मुझे एक बात की थोड़ी सी जो दर्द या कुछ कहते हैं कि बुरा लगता है, जैसे मैं एज एन जूरी जब मैं स्टेट अवार्ड या कहीं जाती हूँ तो एक फॉर्म दिया जाता है, और जब हमारे सामने वो फॉर्म रखा जाता है तो उस पर लिखा होता है कि स्पेशल कैटेगरीज फॉर फीमेल डायरेक्टर और स्पेशल डेब्यू डायरेक्टर और लेडी. तो मुझे ये लगता है कि वो डेब्यू मेल फीमेल साथ में क्यों नहीं है. A few years back, I would say around 10 to 15 years back, there was a different view people had. It was like, okay, a woman cannot give that much time to work as a man can give, because a woman has to also take care of the family, and she has responsibilities over her personal front, etc. टाइम रहता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है. जैसे बीइंग लेडी अगर मैं बोलूँगी तो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं डायरेक्टर राइटर भी हूँ और मैं सोशल वर्क भी करती हूँ. तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपके पास टाइम नहीं है. टाइम निकालना पड़ता है. अगर दिल से कोई भी चीज़ करना चाहो तो वो हो सकती है. Initially I was a homemaker, but I got into learning yoga, and I learned yoga so that I could teach it and promote it in the future. But thanks to my family who supported me very well, and that is the reason that I am able to manage mornings and evenings both. लेकिन ऐसा नहीं कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कम ताने सुनने पड़े हो या लोगों ने आपको बहुत ही बुरा कहा हो. लेकिन वो सब चीज़ें तो चलती रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके बारे में बुरी बातें हमेशा पहली कही जाती है. जब एक एज एन लेडी जब वो बाहर जाती है तब अच्छा बहुत कम बोला जाता है. When it comes to work front, there was discrimination, not in terms of how they treat you, but in terms of they were always, there was people who were always skeptical, why would she be able to take the responsibility. शहर में रह रहे, हम मुंबई में रह रहे, और आप कहते कि कुछ नहीं हो सकता. तो उनका यही कहना था कि नहीं मैडम, हमने बहुत कोशिश की, अब हम थक गए, 20 साल तक हमने कर दिया लेकिन नहीं. मैंने बोला अगर आप लोग साथ देते हो तो हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं.
तो उन्होंने बोला आप कोशिश करके देख लीजिए, हम साथ तो देंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ ही है। और मुझे खुशी है यहाँ के जो 4-5 सीनियर सिटीज़न हैं आजू बाजू के बिल्डिंग के, वो मेरे साथ आए। जैसे मिस्टर कुडवा है, मिस्टर अनुराधे है, मिस्टर मेनन है। ये लोग ने कहा चलो हम आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो मैंने एक फेडरेशन छोटा सा शुरू किया, कहीं रजिस्टर वगैरह नहीं किया, लेकिन हमने एक नाम दे दिया, क्योंकि क्यों हम कलाकार लोग हैं और यहाँ कलाकार लोग रहते हैं, तो हमने सोचा चलो कला विहार करके एक हम करते हैं। एंड शुरुआत हमने ये गार्डन से की। हमने कहा ये मिट्टी का ढेर है तो हम एक कोशिश करते हैं अगर यहाँ गार्डन होगा। फिर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो यहाँ गार्डन रिजर्वेशन निकला और उसके बाद हमने गार्डन बनाया। जब हमें गार्डन बन गया और उसका ओपनिंग हुआ तो सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अगर ये चीज़ हो सकती है तो बाकी भी चीज़ें हो सकती है। फिर हम लोग ने रोड बनवाया, फिर स्ट्रीट लाइट लगवाई, पानी है। आज हमारे यहाँ पे सब लोग बोलते हैं अरे नहीं ये एरिया में मत जाओ, ये कॉस्टली एरिया है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ 24 घंटा पानी है, स्ट्रीट लाइट है, यहाँ 24 घंटा गार्डन है। ये शुरुआत कहीं से हुई कि जैसे आप कहते हैं ना कि बीइंग लेडी, आपके घर से पहले आप आपका घर ब्यूटीफुल बनाइए, फिर आपका आंगन ब्यूटीफुल बनाइए, फिर आपका पूरा परिसर ब्यूटीफुल बनाइए। और अगर ये सोच लेके अगर हर औरत बाहर निकले तो मुझे लगता है हर औरत, हर एरिया ब्यूटीफुल हो जाए। In that sense, I wanted to prove myself, and I did not want to prove anyone but myself that I can compete in the world where men think that women cannot dedicate her time to the work as well as her family. Women in India represent 29% of the labor force, down from 35% in 2004. More than half of the work done by women in India is unpaid, and almost all of it is informal and unprotected. Women are not well represented in most sectors, including business leaders. Nearly half of India's women do not have a bank or savings account for their own use, and 60% of women have no valuable assets to their name. It is unsurprising then at 17% India has a lower share of women's contribution to the GDP than the global average of 37%. In addition, women face great physical insecurity. The rate of crimes against women in India stands at 53.9% in India. In Delhi, the capital city, 92% of women reported having experienced sexual or physical violence in public spaces. जैसे मेरी कजिन की लड़की है, उसके साथ में जो कुरान पढ़ने जाती थी, वहाँ उसका कितना बार कुछ हो चुका था। 7 इयर्स की थी। हाँ, कितनी बार। और जब पता चला हॉस्पिटल में कि इसके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, तो वो लोग को पब्लिक में हमारी पुलिस ने रखी, 2 साल में छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ऐसे तो फिर वो आगे जाके और भी कितने लोगों करेगा। ऐसे वो बच्चे को बारे में सोचती है, 7 साल की अभी भी वो सोचती है, उसके साथ में पूरा रेप हो चुका था। I think 90% of the women in our country go through that is your verbal, physical abuse, verbal abuse and all, and that is where that I'm sure 90% of women go through it, and it's just that there are, I won't say 90% come out of it, but there are few percent who are strong enough to deal with it and come out of it as a, not only as a strong woman but also as a successful woman. अभी काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं। ये जो यंग गर्ल्स को ट्रेन में, बस में सताया जाता है या when they are going to the स्कूल और कॉलेज, तो कितने लड़के जो है उनको स्टॉक करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, उनको फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। बट दैट गर्ल हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो जाके कंप्लेन करें, या अगर वो डायरेक्ट पुलिस में नहीं जा सकती है तो देयर आर NGOs, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल्स है, उनको किसी को भी कंप्लेंट करके एक्शन लिया जा सकता है। Everybody should be protected, but women should be given more safety, and law should be there for women because they are more weaker. कितनी लेडीज जो बेचारी कंप्लेंट नहीं कर पाती है, तो आजकल एक नया लॉ है which has come into effect quite recently कि कोई लेडी who is being exploited या उसकी modesty outrage होती है, तो she can lodge a complaint with a grievance cell in the company itself. The Supreme Court has made it very clear that a lady should not be exploited at a workplace. अगर वो कंप्लेंट करती है तो वो जिनके खिलाफ कंप्लेंट है वो रिस्पोंडेंट को नोटिस दी जानी चाहिए, एंड देन रिस्पोंडेंट को वहाँ से हटा देना चाहिए, उसको और कोई ऑफिस में रखना चाहिए, सो दैट द कंप्लेनेंट, द एग्रीड लेडी, शी इज़ नॉट, उसको धमकी ना मिले या उसको इन्फ्लुएंस ना किया जाए। तो वो भी एक
बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि कितने बार जो लेडीज़ होती है वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेंट्स बोल नहीं पाती है, और आजकल वो अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो लेडीज़ के लिए वो काफ़ी अच्छा हुआ है। बट एट द सेम टाइम समटाइम्स वी फाइंड कि अनड्यू एडवांटेज भी लिया जाता है। अब कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है, जो इसके लिए जैसे मैंने बोला, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, और कुछ लोग इसको समझते हैं और उस तरीके से लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये जो चेंजेस आ गया है in terms of understanding feminism, understanding women empowerment, it's all because of the exposure to your various medias, that could be TV, newspaper, laptop, smartphone, anything. If you see the cases these days, what I see कि इससे मेरे साथ अफेयर हुआ हम लोग का, we met on the dating app, we went and met in the hotel, वहाँ पे उसने मेरे को ड्रिंक में कुछ पिला दिया and he took me to the room, वहाँ पे मेरा फोटो निकाल लिया and then he had sexual relation with me and on that I got your mobile shooting, और मेरे को blackmail करता रहा and 4-5 साल तक they had physical relations. Now I fail to understand how can a relationship between a man and a female, if the lady is not ready, how can a male have a physical relation with the lady for n number of years or n number of months unless the lady was a party to it? But our law is very clear that if the girl says or the woman says that मेरे को झांसा दिया है तो दिया है, he has to go behind the bars. सो मेरे हिसाब से नारी सशक्तिकरण एक क्रांति ला रहा है, बिकॉज अभी मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो तनुश्री दत्ता ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, और उसको देखते देखते बॉलीवुड के बहुत सारे फीमेल्स जिनके साथ हैरेसमेंट हुई है या इनडायरेक्टली उनको टॉर्चर किया गया है काम के लिए, तो उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो एक बूम सा आ गया था, मतलब एक क्रांति सी आ गई थी कि अगर औरतें चुप बैठेंगी तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। सो अभी सिनेरियो मुझे लग रहा है कि बदल रहा है। अभी औरतें आवाज़ उठा रही हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बहुत सारी जाके FIR भी दर्ज करवा रही हैं। सो मुझे लग रहा है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है और आगे और भी अच्छा होगा, बिकॉज जितनी भी एजुकेटेड फीमेल्स हैं वो अब चुप नहीं रह रही हैं, वो मुझे लगता है वो आवाज़ उठा रही है, और आवाज़ उठानी भी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग कि आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं मेल्स को ही शक्ति दे रहे हो कि वो और ऐसा क्राइम करेंगे। एंड देन फिर आजकल वो मी टू का मूवमेंट चालू हो गया है, तो मी टू में भी आज 10 साल के बाद कंप्लेंट्स हो रही है, भले पुलिस कंप्लेंट नहीं भी होती, लेकिन वो आदमी की प्रेस्टीज, इमेज एंड सोशल सर्कल में पूरा उसका डिफेमेशन हो जाता है, उसकी इज्जत खराब हो जाती है, उसकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। तो लेडीज should not take undue advantage of the laws which have come in existence now. At the same time ये ज़रूरी है कि लेडीज अभी शर्माए नहीं, डरे नहीं और जाके कंप्लेंट करें। You know कि the mentality of men has to change, and for that the family values are very important, I feel, because it all depends कि how I bring up my child. Okay, so if I teach him to be a dominative person, if I teach him to dominate over his sister, over his parents, over his grandparents, he is going to take those values ahead, and probably when he steps into the outside world, he would start thinking कि I can dominate on any person, and especially on any woman he wants to. So if we start treating our sons, if we actually culture them to be a gentleman, a gentle person, and I think that would really bring a very good change. It has to start from the roots. And normally it is said, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अरे तू तो लड़का है, you should not cry, you should not be sensitive. But I feel कि that is very wrong, because we are human beings and we are the only ones who cry and laugh. तो अगर आप हंस सकते हो तो रो क्यों नहीं सकते हो? तो I feel कि it is very human to cry, and let the men also cry. They should also express their feelings. Many a times I've seen कि उनको कर्ब किया जाता है, तो वो दबा के रखते हैं अपनी feelings and emotions, and then it might come out in a wrong manner. So it should start from the roots,
अचानक से कोई लड़का या कोई इंसान ऐसे हैवान नहीं बन जाता है. इट इज़ ऑल कि उनके रूट्स में क्या है, हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप. सो आई थिंक वो चेंज वहीं से शुरू होना बहुत ज़रूरी है. मतलब अपना इमोशंस दिखाना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. सो क्राइंग इज़ ऑल्सो एन इमोशन. लाइक men can show love, men can show anger. So similarly men can show their crying emotions also. So crying is not bad thing. हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जब उनके साथ कोई भी फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो. ओके, फर्स्टली. दूसरा ये कि कुछ फीमेल्स है जो जेंडर इक्वालिटी को या फेमिनिज्म को नेगेटिव तरीके से लेके फॉल्स अक्यूजिंग भी करते हैं. I have got cases where the women they ask for huge amount of money. नहीं तो धमकी देते कि हम रेप केस डाल देंगे तुम्हारे पे. Because there are some photographs together. या कोई आजकल तो मोबाइल है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप पे है, तो कोई भी मैसेज है और थोड़ा वल्गर मैसेज है तो उसको यूज़ कर लेते हैं. तो फिर देन प्रॉब्लम हो जाती है. मैन गोज बिहाइंड द बार्स. एंड अगर रेप के एलिगेशन लग गए तो वो आदमी कभी जमानत पे छूटेगा या कभी बाहर छूटेगा, नोबडी नोज. यहाँ तक कि अगर वो लेडी कोर्ट में भी अपना स्टैंड रखती है कि मेरे से इससे मेरे को झांसा दिया कि मेरे से शादी करेगा और फिर शादी नहीं किया एंड ऑन दैट प्रिटेक्स्ट मेरा एडवांटेज लिया, हैड फिजिकल रिलेशंस एंड आई वाज रेप्ड, तो इवन देन द मैन इज बिहाइंड द बार्स for 7 years, 10 years, whatever. So this, I think, and I don't see any end to it at the moment. कुछ मेल्स एक हद तक डरते हैं, ओके, और कुछ वुमेन एक हद तक क्या करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और फिर वो मेल पे थोप देते हैं. नाउ ये 100% तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो कुछ मेल्स, इसलिए मैंने कहा कुछ मेल्स और कुछ फीमेल्स. ओके, सो वी कैन नॉट जनरलाइज दिस स्टेटमेंट. ओके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज भी कुछ मेल रेप नहीं करते और कुछ फीमेल्स विक्टिम नहीं होते. सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने में, लोगों को हैंग करने में दे टुक सो मच ऑफ टाइम. वैसे नहीं होना चाहिए. पीपल आर स्कैर्ड कि वो लेडी एम्प्लॉय रखते हैं या लेडी जूनियर या कोई रखते हैं एंड कल को हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है एंड इफ द लेडी वांट्स टू मेक सम कंप्लेंट तो हमारी जो प्रेस्टीज बनी है इतने सालों की वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी. तो अब अल्टीमेटली द लेडीज जो एडवांटेज ले रही, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि दे आर causing loss to their own women folk and the men also should be trained not to take girls or ladies for granted. They should learn to respect a lady, a woman. In a nutshell, a feminist is one who believes in achieving the utopian concept of men and women coexisting together without making any other person insecure about their position and their role in the society. If a man comes and tells me that he has been abused or he has been beaten up by his wife or if he has been sexually abused, okay, I would say, oh okay, बस उतना तक. But if the same thing a female comes and tells me, oh why didn't you do this, why didn't you complain, why don't you go and complain, let us go to police station, let us file a case against him, it becomes, so it's not about just just जो बुक में लिखा है वो पढ़ के समझना. इट इज़ अबाउट तुम्हारा थॉट प्रोसेस तुम कैसे चेंज करते हो, देन ओनली वो जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा. How far will women progress in the next 15 years? The future of our growing population depends on it.